So, good afternoon, friends. Myself Vivek Prajapati, and today I am talking or I am covering and about the costing. So, basic element of cost accounting. So, this is the type chapter which is useful for the IGNO or maybe chartered cost accountant BCom or MCom or company state secretary student. So, this topic is all about the basics element of costing. देखिए कॉस्टिंग का जरूरत हमेशा होता है. सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टॉपिक है सबके लिए बहुत जरूरी है. सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉस्टिंग क्या होता है. व्हाट डू यू मीन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, व्हाट द टाइप ऑफ कॉस्टिंग एंड व्हाट द मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी and inventory control, labor control, overhead and cost sheet, how to prepare the cost sheet, budgetary control, marginal costing, your standard costing, all the basics thing I am going to cover about all the costing. So basically I am a cost accountant and I was also completed my cost accounting in 2008 and secured all India topper. From the all India topper in eastern region second rank and all India 23rd rank I have secured. So this topic is all about the costing and I am last 10-15 years I am only doing the cost accountancy of different industry and different corporations. So cost accountancy. So what is the definition of cost accountancy, objective of cost accountancy, importance of cost accountancy, advantages of cost, limitations and installation of costing system. This is all about cost accountancy. Then installation of costing system, for the basic consideration, steps to be taken for system installation, then good costing system essentials, the role of cost accountant, cost accountancy and type of costs, marginal cost, standard cost, budget cost and your decision making, all these things, opportunity cost, joint cost, sunk cost or detail of different type of cost. Then cost center and cost unit, allocation, approximate of variance. Then element cost, material, labor and overhead. Then cost classification and the basis of nature, behavior, element and functions. Then type of costing and technique of costing. This is historical costing, uniform costing, standard costing, marginal costing, observation costing. Then method of costing system. What are the different method of costing system which is adapted? Job costing, batch costing, standard costing, your process costing, operating costing, multiple costing. So method of costing. So basically what is cost? Before understanding the cost and management accounting, we should know what is cost. So cost का मतलब क्या होता है? Cost मतलब होता है कि suppose for example पेन. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेन? सपोज इसका पेन का दाम है सपोज 200 रुपीज. सो हाउ इट इज डिराइव 200 रुपीज. सो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज व्हाट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेड टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और रेंडरिंग सर्विसेज इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व है? मटेरियल है, प्लास्टिक हो सकता है या आयरन हो सकता है, मटेरियल है. लेबर, इसमें बनाने के लिए कोई आदमी बना है, लेबर एंड अदर ओवरहेड, जैसे इसमें नीब लगा हुआ है और ये मेटल है. सो दिस इज अबाउट द ओवरहेड. सो तीन चीज मिलके जो है ये प्रोडक्ट को, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. सो दिस इज व्हाट कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज और प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहे हैं, मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा हूँ, आई एम गिविंग द सर्विसेज. सो मैं सपोज आपको चार्ज कर रहा हूँ, सपोज कॉस्टिंग के बारे में आपको समझाया, इसका सपोज चार्ज है 200 रुपीज एक क्लास का. तो इसमें जो है मेरा जो ये मैं इंटरनेट से आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसका चार्जेस है, लाइट जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, कैमरा का कॉस्ट. सो व्हाट आर द कॉस्ट आई हैव इनकर्ड? सो दैट इज द पार्ट ऑफ your costing or there is a part of cost. So amount involved for producing or rendering service. So cost accountancy. What is cost accountancy? Institute of Cost and Management Accountant of London.
इंग्लैंड जो बोल रहे हैं लंदन, ये क्या दिए, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, और इट इज ए साइंस एंड आर्ट प्रैक्टिस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट असर्टेनमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब जो है हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। सो कॉस्ट अकाउंटेंसी, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, व्हाट डिफाइन कॉस्ट accountancy is the process of accounting the cost. It is a process of accounting the cost. कॉस्ट को कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट. जैसे व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज recording, classifying and bookkeeping of financial or economic activity or transaction. Similarly, cost accountancy is the process of accounting the cost, material cost, labor cost or other overhead cost. It is a accounting of cost. Sorry. This process begin with the recording income tax expenditure, income or expenditure. It is a process of recording income or expenditure or base of which calculation of cost is made. Preparation of periodical cost statement and cost report. It is a preparation of cost statement. जो cost sheet हम लोग देखेंगे आगे. Preparation of cost statement, cost sheet and report for ascertainment of and cost control. So this is all about the cost accountancy. Then objective of cost accounting. क्या objective क्या है? कोई चीज हम लोग जब करते हैं, so we should know what is the objective of cost accountancy. So what is the basic objective of cost accounting? So main objective of cost accounting are ascertainment of cost, then past costing, continuous costing, your determination of selling price, ascertainment of profit, then cost control and cost reduction, then ascertaining the management, assist the management for decision making. So these are the some of the objective of cost accountancy. So first is your ascertainment of cost. So cost accountancy help for ascertainment of cost. एक प्रोडक्ट का क्या दाम है, जब आप कोई चीज बनाते हैं उसका एग्जैक्ट कॉस्ट ही आपको पता नहीं होगा, सो हाउ यू कैन डू दैट? सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी फिक्स. सो कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प फॉर द ascertainment of cost. गॉट माय पॉइंट? एक कंप्यूटर बनाते हैं तो व्हाट मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए कंप्यूटर. देन इट इज ए past costing. Ascertainment of cost can be done on actual information basing or it can be past. जो past का जो रिकॉर्ड है, लास्ट में आप कितना खर्चा किए थे. फॉर एक पेन बनाने के लिए पिछले साल आपने 100 रुपया खर्चा किया, तो इस साल अब कितना ज़्यादा होगा. अब मेटेरियल प्राइस बढ़ा होगा तो बढ़ सकता है, लेबर इंक्रीज हुआ होगा तो हो सकता है. सो पास्ट रिकॉर्ड को देख के आप कॉस्ट शीट बना सकते हैं और कॉस्ट अस्टेटमेंट कर सकते हैं. फिर दूसरा हो गया कंटिन्यूअस कॉस्टिंग. आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं एवरी डे, और इट इज ए प्रोसेस ऑफ ascertainment ऑफ कॉस्ट और कंटिन्यूअस इन नेचर, व्हिच इज द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड. पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट होगा, फॉर जॉब कॉस्टिंग आप बनाते हैं कंटिन्यूअस कॉस्टिंग. जैसे एक कोई आदमी आया जॉब कॉस्टिंग में, जैसे हो गया आपका एक क्या बोलते हैं डोर, लोहा का गेट बनाते हैं, तो आयरन गेट, तो ये पर्टिकुलर जॉब है तो उसका कॉस्टिंग अलग होगा. फिर वो कस्टमर चला जाता है अपना प्रोडक्ट बना दे, फिर दूसरा कोई एक कस्टमर आता है, ओके एक विंडो बनाता है आयरन विंडो. सो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्टिंग होता है एज पर द कंटिन्यूअस कॉस्टिंग. द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, इट हेल्प फॉर द सेलिंग प्राइस. सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज योर सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन. देखिए कोई प्रोडक्ट का जब सेलिंग प्राइस तभी फिक्स कर सकते हैं जब उसका आप क्या उसको प्रोड्यूस करेंगे और उसको सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे. तो सेल्स इज इक्वल टू व्हाट योर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है.
तो आप जब कॉस्ट जानेंगे, सपोज इसका कॉस्ट 80 रुपीज, योर प्रॉफिट इज योर 20 रुपीज, then your selling price will be your 100 rupees. So it help for the ascertainment of selling price or fixation of selling price. Then ascertainment of profit, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट आपका 80 रुपया कॉस्ट है, प्रॉफिट अब 20% दे दिए तो सेलिंग प्राइस योर 100 रुपीज. सो इट हेल्प फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट. ये प्रोडक्ट वाइज हो सकता है और यूनिट वाइज हो सकता है और डिवीजन वाइज हेल्प हो सकता है. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल गिव द total profitability as a whole, but cost accountancy give you product wise, unit wise profit per product or loss per particular product, or division wise profitability can be measured. So it help for the ascertainment of profit. Then cost control and cost reduction. So cost accountancy help for you cost reduction and cost control. So what is cost control? Cost control is the temporary reduction in the cost, whereas the cost रिडक्शन इज द परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट. ठीक है, जैसे मेटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे आपका मेटेरियल कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सो दैट कैन बी कंट्रोल. एंड कॉस्ट रिडक्शन इज द परमानेंट रिडक्शन. एक यूनिट बंद कर दिया, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर बंद कर दिया, सो दैट इज योर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. सो कॉस्ट कंट्रोल एम टू मेंटेन द cost in accordance with the established standard. So cost control is a what? It is a establish the particular standard. एक particular standard है उसको follow करना है और cost को control करना है. So cost control involve the following step. Determine the target cost. आपका target cost क्या है? What the actual cost? Then variation. Then take corrective action. That is what cost control. आपने सोचा था कि मेटेरियल कॉस्ट जो है 100 रुपया होगा, दैट इज योर बजट. एक्चुअल हुआ आपका 80 रुपया, सो योर फेवरेबल वेरिएंस हुआ 20. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉस्ट कंट्रोल. द बजट इज योर 100, एक्चुअल इज योर 80 एंड 20 इज योर फेवरेबल वेरिएंस. आपका उतना क्या हुआ, फायदा हुआ. So this is all about the cost control. Then cost reduction, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, cost reduction on the other hand to improve the established target, depend achievement of real or permanent reduction. It is a permanent reduction in the cost or unit cost of goods manufactured or service rendered without impairing the sustainability or यूज रेंडर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. बिना क्वालिटी का प्रोडक्ट को रिड्यूस करके आप परमानेंट रिडक्शन करते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट का, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन. परमानेंट रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट विदाउट हैम्परिंग द क्वालिटी इज नोन एज योर कॉस्ट रिडक्शन. और यूनिट प्राइस, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हो सकता है या यूनिट डिवीजन का भी हो जाता है. देन असर्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन मेकिंग. नेचुरली इट हेल्प फॉर द डिसीजन मेकिंग. देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर टोटल कंपनी का प्रॉफिट बताएगा, बट इट हेल्प फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट. सपोज एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाई है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी. सो कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प यू फॉर द डिसीजन मेकिंग, व्हिच प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, व्हिच प्रोडक्ट शुड नॉट बी प्रोड्यूस. सो इट हेल्प फॉर द डिसीजन मेकिंग फॉर द मैनेजमेंट. एंड व्हिच डिवीजन, 2 डिवीजन या 3 डिवीजन है तो कौन डिवीजन को बंद कर सकता है, उसमें प्रॉफिटेबल आ रहा है, कौन डिवीजन को नहीं बंद कर सकता है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है. सो इट हेल्प फॉर द डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस फॉर व्हिच 2 और मोर अल्टरनेटिव. जैसे कॉस्ट अकाउंटेंसी है, ये बोलते हैं कि मोर देन 2 डिसीजन है आपका. सो इन दैट केस इट हेल्प फॉर द टेकिंग ऑफ द various alternative can be taken for your decision making. 2 से 3 ऑप्शन है तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना. एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट हेल्प फॉर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. हाउ मच द एक्सपेंडिचर एंड व्हाट मच द इनकम.
आप 1,00,000 रुपये खर्चे करेंगे तो कितना इनकम पाएंगे। एक प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे तो हाउ मच कॉस्ट यू आर इनकरिंग एंड हाउ मच रेवेन्यू यू आर गेटिंग। सो इट हेल्प फॉर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। So naturally it help for the decision making. So these are the some of the objective of cost accountancy. So first is your ascertainment of cost, second ascertainment of selling price, third your ascertainment of profit, then fourth is your cost reduction and cost control, and fifth is your cost this help for the decision making or fixation of your decision. So this is all about your objective of cost accountancy. Next is your importance of cost accountancy. What is the main importance of cost accountancy? So control of material cost, then control of labor cost, then control overhead, then determination of selling price, measure the efficiency and strategy decision making. So these are the some importance of cost accountancy. So first is your control the cost. Normally the material cost can be controlled. So material cost क्या है? It is the cost of the particular product, major cost जैसे रॉ मेटेरियल। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल में सबसे ज्यादा क्या खर्चा होता है उसमें? रॉ मेटेरियल जो है वुड। सो वुड इज द रॉ मेटेरियल। एक लेदर शू में सबसे ज्यादा क्या है खर्चा होता है? लेदर। गॉट माय पॉइंट? एक सपोज एक चेयर है, चेयर का सब आयरन चेयर है, लोहा का चेयर है। सो रॉ मेटेरियल इज योर आयरन, और उसमें लेदर भी लगा होगा, लेदर हो सकता है, नील लगा, नेल, बहुत सारे कांटे छोटा छोटा, दैट कैन बी यूज, पेस्ट लगा हुआ है। सो रॉ मेटेरियल इज द मेन कॉस्ट, सो इट हेल्प फॉर द कंट्रोल ऑफ मेटेरियल कॉस्ट। सो मेटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसका इन्वेंट्री कंट्रोल, जितना मेटेरियल चाहिए उतना आप मंगाएंगे जस्ट इन टाइम। आपका पास अगर रॉ मेटेरियल बहुत ज्यादा खरीद के रखेंगे तो क्या होगा? आपको इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगा, गोडाउन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, योर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो मेटेरियल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल बाय फिक्सिंग द लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, then EOQ, economic order quantity, then various value analysis or standard costing technique, you can control your material cost. Then labor cost. How labor cost? Labor cost मतलब वो क्या हुआ? The person who are involved in produce the product. जैसे आप लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो है कि ब्रिक्स बनाने के लिए 10 मिनट या 3 मिनट टाइम लगता है या 5 मिनट टाइम लगता है। सो पर्टिकुलरली 10 टोप बनाया है तो कितना लगेगा? 10 × 5, 50 मिनट, 50 मिनट्स। सो यू कैन फिक्स द स्टैंडर्ड, देन एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड, देन डिफरेंस बोनस सिस्टम यू कैन इंट्रोड्यूस, जो ज्यादा करेगा उसको बोनस भी मिलेगा। Then you can labor cost can be fixed as a per unit basis or hourly basis, 8 घंटा का, 5 घंटा का, 6 घंटा का, you can pay hourly basis also. Then by controlling labor turnover, अगर जितना स्किल लेबर है आपका कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, so labor turnover can be also control, means turnover मतलब हो गया जितना छोड़ रहे हैं फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, so that is what labor turnover, so that can be control. Then idle time, आदमी बैठे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, जैसे खैनी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बट देयर इज नो प्रोडक्शन, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, स्टेट गवर्नमेंट PSU में, देयर द पीपल इज नॉट वर्किंग, दे आर ओनली बिलीव ऑन सिटिंग बट दे आर नॉट प्रोडक्टिव वर्क। सो आइडल टाइम, वर्क देयर इज नो वर्क बट देयर इज ए पे, बाय कंट्रोलिंग द ओवर टाइम, बाय लेबर टर्नओवर, देन प्रॉपर रेम्यूनरेशन सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर। सो दीज आर द सम methods you control the material cost. Level settings material cost में, सब लेबर मटेरियल, जस्ट इन टाइम, स्टैंडर्ड कॉस्ट।
देन कंट्रोल ओवरहेड, ओवरहेड मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज योर प्राइम कॉस्ट और मेजर, एंड उसको छोड़ के जो है मटेरियल और लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको छोड़ के जो होता है उसको बोलते हैं ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor and indirect overhead or indirect expenses is known as overhead. So indirect overhead can be controlled. जैसे मैंने आपको बताया था ये पेन बनाया तो इसका जो नीब है इट इज ओवरहेड, ठीक है, इसका जो ढक्कन ओवरहेड है, और एक दरवाजा उड़ का दरवाजा बना, डोर बना तो उसमें नेल लगता है, कांटी जो बोलते हैं, so that can be overhead, so that can be also control, but proper reallocation or approximate of overhead, total सर्विस और प्रोडक्शन ओवरहेड को जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट इज व्हाट ओवरहेड अकाउंटिंग, जो सभी यूनिट कॉस्ट, जैसे हो गया एक पर्टिकुलर कंपनी में 3 डिवीजन है, फॉर एग्जांपल मशीनिंग, असेंबली एंड योर प्रेशर डाई कास्टिंग पीडीसी, जो कि जनरली एक ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज होता है, मशीनिंग, असेंबली, सॉरी पीडीसी, देन मशीनिंग एंड असेंबली। पीडीसी में होता है एक सांचा में जो है कि वो प्रोडक्ट डालते हैं, मशीनिंग में हो गया आपका उसमें ड्रिल वगैरह करते हैं, असेंबली में सब प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं, 3-4 पार्ट्स को असेंबल करते हैं। सो ये जो हो गया ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट हो गया जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, हेडक्वार्टर खर्चा हो गया। सो ऑल द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज डिवाइडेड अमंग द योर प्रोडक्शन ओवरहेड और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सो दैट इज कॉल्ड रीअपोर्शन और approximate of overhead, through which better method of practice should be, costing practice should be done, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, और ओल्ड मेथड ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। देन डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं जब आप कॉस्ट पता चल जाए आपको, प्रॉपर कॉस्ट इफ यू नो, नेचुरली यू आर एबल टू नो हाउ मच योर कॉस्ट, देन यू विल एबल टू फिक्स द सेलिंग प्राइस। आप मेक करेंगे कि बाई करेंगे, सो इट हेल्प फॉर द बेटर द सेलिंग प्राइस फिक्सन। देन बजटिंग, व्हाट इज बजट? बजट इज इट इज ए क्वांटिटिव रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, एक क्वांटिटी भी है और मेटेरियल भी है। सो बजट क्या है? बजट कैन बी ऑल्सो डिफरेंट टाइप, क्या हो सकता है? मेटेरियल बजट हो सकता है, लेबर बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, सेल्स प्राइस, प्रोडक्शन बजट हो सकता है। सो बजट इज द स्टेटमेंट, हम लोग देखेंगे जब बजट डिटेल पढ़ेंगे। सो इट इज ए स्टेटमेंट, क्वांटिटी और मॉनेटरी टर्म, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड, इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, मे बी क्वांटिटी और फाइनेंशियल और in monetary term. Then measure the efficiency, it help for the efficiency, particular department का efficiency आप पता चल सकता है या particular unit का आप efficiency जान सकते हैं। जैसे accounting system क्या है, particular company का आपको profitability बताएगा, but cost accountancy will give the particular profitability of particular division, particular unit, so it cost center जिसको बोलते हैं, so which the management is able to take the efficiency or effectiveness of particular department, unit or cost center. Then standardization and decision making, naturally मैं आपको जो बताया था मेक और बाई, आपको प्रोडक्ट जो बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, आप अगर खरीदेंगे तो कितना लगेगा, so it help you for make और बाय डिसीजन मेकिंग और शट डाउन ऑफ कंटिन्यूस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपको जो यूनिट और डिवीजन अगर काम नहीं कर रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं दे रहा है, यू कैन शट डाउन आल्सो, सो इट इज हेल्प फॉर द स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम्स। सो पहले हो गया कंट्रोल ऑफ मेटेरियल कॉस्ट, सेकंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, देन कंट्रोल ऑफ ओवरहेड, देन डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बजटरी कंट्रोल एंड एफिशिएंसी मेजरमेंट, देन स्ट्रेटेजी decision making. So these are the important of costing system. Next, your advantages of costing system.
What are the difference? Then advantages of costing, cost accountancy क्या है, हेल्प करता है. सो इट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल एंड लेबर एंड कैपिटल. दीज आर द थ्री थिंग्स फॉर योर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज तीन हो गया, मैन हो गया लेबर कॉस्ट, मटेरियल हो गया मेटल कॉस्ट एंड कैपिटल इज योर इन्वेस्टमेंट. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ your resources. Then identify the area of your corrupting action. जो जैसे मेटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है कंट्रोल कर सकते हैं. सो इट हेल्प फॉर द corrective action for control your cost. Then it help for price fixation. जैसे मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस फिक्सेशन. So it help for the better pricing or selling price fixation. Then cost control and cost reduction. It help for the cost control and cost reduction. Then it help for the various costing method or technology can be used. जैसे process costing, material costing, job costing. It various costing method is used. So ascertainment of cost can be possible and cost control can be measure or cost can be measured. Then it help for the policy making. जो भी मैनेजमेंट है इन लोग को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होता है. इट हेल्प फॉर द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंपनी. देन पॉलिसी फाइनेंशियल डिसीजन में एनी फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजी डिसीजन कैन बी टेकन वेदर वन यूनिट कैन बी शट डाउन और एनी वन प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस और इट कैन बी नॉट प्रोड्यूस. एक प्रोडक्ट बनाए या नहीं बनाए इसको हेल्प करता है फॉर स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग. देन formulation of cost center और responsibility center. It help for the responsibility center. एक particular division में उसको cost unit को responsible center बोल सकते हैं या cost center बोल सकते हैं. उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? Formulation of cost center और responsibility central for exercising the control. Control purpose से आप बना सकते हैं. Then marginal cost. What is marginal cost? It is the variable cost. So through contribution analysis you should know which product to be produced, which should not be produced. So these are the some of the advantages of costing system. So first is your, just repeat, I am just repeating continuously about the advantages. Optimal utilization of man, material, labor. Identify the area of corrective actions. Then identify the unprofitable activity, loss or effectiveness. जो product का loss है या प्रॉफिटेबल नहीं दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करना. फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन. देन कंट्रोल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. यूज ऑफ वेरियस कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक. फॉर्मुलेट द पॉलिसीज. देन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट सेंटर फॉर्मुलेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. देन मार्जिनल कॉस्ट. Then what is the limitation of cost accountancy? Cost accountancy का limitation क्या है, खराबी क्या है? It is not exactly science but inherent limitation of judgment. It is not actual science. ये actual science नहीं है. Cost vary with purpose. जो भी particular cost है उसका पर्पस के हिसाब से वो वेरी होता है. So sometimes the actual cost does not give the correct picture of the particular product cost. So cost allocation collection for the one purpose will not suitable for the another purpose. हर एक कॉस्ट का अदर नेचर होता है. जो कलेक्शन मेथोडोलॉजी, एक कॉस्ट जो आप कलेक्ट किए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर डिवीजन के लिए, वो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है यूजफुल. सो इट इज द वन ऑफ द डिमेरिट. सेकंड हो गया नॉट गिविंग द आउटलाइन सॉल्यूशन. समटाइम कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रेजेंट बेस्ड tracking based decision making does not give the outline solutions. Most of the cost accounting technique is based on some pre-assumed or notions. कॉस्ट में जो है कि एजम्पशन बहुत ज़्यादा लिया जाता है, so sometime it will not give the correct picture. Then operational and common cost.
सम ऑफ द कॉमन कॉस्ट, जैसे एक पर्टिकुलर डिवीजन में कॉमन कॉस्ट होता है, मतलब 3-4 प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर होता है, उससे खर्चा होता है, सो उसको डिवाइड करना में समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट, कॉमन कॉस्ट होता है। और दूसरा हो गया हर एक टाइप में डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट व्यू और डिफरेंट ओपिनियन, सो different view can be obtained as per the persons is different and the treatment of cost item will be different. As per the standard cost accounting standard, different product and different item has different procedure to be considered for each measurement and cost determinant. So these are the limitation of cost accountancy. Then installation of costing system. एक कंपनी जो है एक कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना जा रहा है, नया कॉस्टिंग का सिस्टम डेवलप करने जा रहा है। सो व्हाट आर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस? सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? द मेन ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग सिस्टम क्यों अडॉप्ट करते हैं? देखिए अकाउंटेंसी सिस्टम तो है ही है, हम लोग कॉस्टिंग क्यों अडॉप्ट करते हैं? तो इट हेल्प फॉर द असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, देन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्टिंग का है सेम चीज है, cost reduction, cost attainment and decision making. These are the some objective of costing system. जो cost accountancy system का है, costing system का भी सब objective है और may be sometime vary. Then steps to install the costing system. क्या क्या steps हैं? So introduce the cost accounting system will following steps. क्या step है? पहला हो गया classification of cost. Cost can be classified in different category. जैसे हो गया एज पर द एलिमेंट वाइज कॉस्ट, एज पर नेचर वाइज कॉस्ट, जैसे हो गया फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, देन नेचर, देन पीरियड, कंट्रोलेबल नॉट कंट्रोलेबल, देन योर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हम लोग जाके देखेंगे। सो इट हेल्प फॉर द फर्स्ट स्टेप इज हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कोडिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कोड करेंगे, मटेरियल कॉस्ट का अलग कोड होना चाहिए, लेबर का अलग कोड होना चाहिए, और सो कोडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, कोडिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कॉस्ट। देन कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफिकेशन, कॉस्ट सेंटर एक पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है, एक मशीन हो सकता है, सो इट इज द फिक्सिंग द कॉस्ट सेंटर। देन प्रिपरेशन और द सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो एक गाइडलाइन प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। देन एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है या जॉइंट कॉस्ट है उसको एलोकेट करना पड़ेगा। और सेकेंडरी सर्विस यूनिट कॉस्ट कैन बी अप्रोक्सीमेट विद द प्रोडक्शन ओवरहेड, सो द बेसिस हैज टू बी डिटरमाइंड, नॉर्म हैज टू बी फिक्स्ड। देन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिंग मैनुअल, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिंग मैनुअल, देन रिपोर्ट एंड पीरियोडिकल गाइडलाइन, देन पोस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, जो कॉस्टिंग सिस्टम वन होगा उसके बाद उसको कॉस्टिंग। सो दीज आर द सम ऑफ द अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो कोडिफिकेशन, देन एस्टैब्लिश कॉस्ट सेंटर, गाइडलाइन प्रिंसिपल, एलोकेशन, देन स्टैंडर्ड नॉर्म्स, स्पेसिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट मैनुअल, एड योर गाइडिंग। Classification, elimination of cost center, guiding separate fixed, allocation of cost, standard norms, and report, cost manual, and your post costing installation. This is about the your steps to install costing systems. Then list of down the factor to be considered by installation of costing system. क्या क्या factors है? So these are the factors which are costing considered while costing system. Nature of the business, क्या nature है? The layout of the aspect, organization का layout, method and procedure, then management expectation policy, technical aspect, simplicity, formation of standard, accuracy of data. So these are the factors. So पहला हो गया
ले डाउन द फैक्टर टू कंसिडर कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम जब अडॉप्ट करने जाते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स इसमें कंसिडर करते हैं। सो पहला होगा नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या नेचर है, whether it is manufacturing, it is a process industry or it is a manufacturing industry. So what is the nature of the business? नेक्स्ट हो गया लेआउट एस्पेक्ट। कॉस्टिंग सिस्टम में आने से पहले लेआउट, लेआउट मतलब होगा कहाँ इसका लोकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, which help for the layout aspect. Who are the promoter, what are the different product they are producing. Then method and purpose and procedure, कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करेंगे। सो सुटेबल मेथड हैज टू बी आइडेंटिफाई, परचेज का क्या मेथड है, स्टोर का क्या मेथड्स होगा, इशू का, रिसीप्ट का क्या मेथड्स होगा। सो मेथड हैज टू बी एंड प्रोसीजर हैज टू बी अंडरस्टैंड। देन मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन एंड पॉलिसी, कंपनी का मैनेजमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट मैनेजमेंट कॉस्टिंग सिस्टम ऐसे बनाइए दैट इट शुड बी बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन शुड बी नोन। देन टेक्निकल एस्पेक्ट, जो भी टेक्निकलिटी है, सपोज हाउ टू सेग्रीगेट द डिफरेंट एक्सपेंडिचर बिटवीन द सर्विस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो टेक्निकल एक्सपर्ट और टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। देन इम्प्लिसिटी सिस्टम, इजी अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट सिस्टम। देन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन का है उसको वेरियस कॉस्टिंग सिस्टम से स्टैंडर्डाइजेशन रखना पड़ेगा। देन यो एक्यूरेसी ऑफ डाटा, व्हाट द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, supply system and determination. So these are the some factor to be considered while installation of costing system. जो एक्यूरेसी, जो डाटा लीजिएगा आप कहाँ से, सोर्स ऑफ डाटा शुड बी नोन, बिकॉज ए प्राइमरी सोर्स होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। नेक्स्ट एसेंशियल ऑफ गुड कॉस्टिंग सिस्टम, क्या एसेंशियल होना चाहिए। सो इट शुड बी सिंपल एंड इजी, जो भी कॉस्टिंग अकाउंट सिस्टम होगा इट शुड बी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स करा दे कॉस्टिंग सिस्टम, क्यों किसी को समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू यूज इट एंड दे विल नॉट टेक द बेनिफिट, तो उसका फायदा नहीं है। सो कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी सिंपल एंड प्रैक्टिकल, शुड बी टेलर मेड, मतलब जो भी हो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, टेलर मेड, एक पर्टिकुलर ढांचा होना चाहिए। द डाटा यूज इन द कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी एक्यूरेट, जो डाटा है, जो भी आप डाटा के कॉस्टिंग बनाना है तो कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे। सो ए डाटा शुड बी प्रॉपरली, इनपुट शुड बी देयर। देन सिस्टम टू then tailor made, accurate, data should be accurate. Then system, costing system should be utility by introducing the materials and unnecessary detail, जो भी unnecessary detail है उसको eliminate करना है, जितना requirement है उतना ही उसको costing system में adopt कराना है, use करना है। Then cost installation, the cost of installation should be justified. कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन जब करिएगा इट शुड बी जस्टिफाइड, ये नहीं कि कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करने में करोड़ और रुपये खर्चा हो गया और रेवेन्यू कंपनी कुछ नहीं है। सो इट शुड बी जस्टिफाइड। देन एक्टिव कोऑपरेशंस विद द डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कोरिलेशन शुड बी देयर बिटवीन द डिपार्टमेंट, बिना डिपार्टमेंट का कोरिलेशन में कुछ नहीं हो सकता। सो एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट का जरूरत है, परचेज, फाइनेंस, ऑपरेशन, every department is useful for better costing system. Then careful for phase
phases program, preparation of network analysis and integration of system. Then likely to be expert in introduce the cost accounting system. Difficulty, what are the difficulties in costing accounting system? But sometimes while preparation of cost accounting system there is some difficulty, lack of support. जो जहाँ पर इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं सपोर्ट मिलेगा नहीं, आपको डाटा नहीं मिलेगा, कोई डिपार्टमेंट हेड आपको सपोर्ट नहीं करेगा. सो कैन यू फिक्स इंस्टॉल द कॉस्टिंग सिस्टम? नो. देन रेसिडेंस टू अकाउंट, रेसिडेंस फॉर अकाउंटिंग स्टाफ. जो भी आदमी हैं वो लोग बोले नहीं हमको जो मेथड है उसी में काम करें. जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एसबीआई ने जब नया आया कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम तो स्ट्राइक हुआ, लॉकआउट हुआ, बट लास्ट में कंपनी अडॉप्ट किया. जैसे इजीली अभी हो रहा है, घर जाना आपको बैंक में लाइन लगाना नहीं पड़ता, इजीली यू कैन डिपॉजिट मनी, विथड्रॉ मनी, इजीली यू ट्रांसफर मनी. सो रेसिडेंस टू चेंज. देन नॉन कोऑपरेशन ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ. The top level or your lower level also you are not supporting you. Then storage of trained staff, shortage of trained staff. Costing system इंस्टॉल करने के लिए आपको एक एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए. सो ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं. सो शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ. सो दीज आर द डिफिकल्टीज. देन मे बी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी वेरी कॉम्प्लिकेशन. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मे बी यू कैन से योर policy of the organization is very difficult. सीक्रेसी बहुत रखना पड़ेगा. सो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है बिफोर योर सिस्टम इंस्टॉलिंग द कॉस्टिंग सिस्टम. द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. देखिए पहले के टाइम में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी में चार्टर्ड अकाउंटेंसी को बहुत ज़्यादा महत्व देना पड़ता है. सो मेरे दोस्तों जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बुरा मत मानना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. सो प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज. सो बट लास्ट 5-10 साल देखा गया कि कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑल्सो गिवन है मच मोर इम्पोर्टेंस. कोई भी PSUs होगा ना, पब्लिक सेक्टर है, तो जनरली दे आर गिविंग प्रायोरिटी कॉस्ट अकाउंटेंट इन द फर्स्ट प्रायोरिटी. बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा रोल है इन कंपैरिजन टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सो रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो क्यों चाहिए, व्हाई कॉस्ट अकाउंटेंट इज मच मोर नेसेसरी इन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इट एस्टैब्लिश द कॉस्ट अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट इन दिस फंक्शन. सो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश करने में मदद करता है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हुआ, जैसे कोल, स्टील, पावर, कोल, स्टील, पावर, ऑयल, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री. सो दीज आर द सम ऑफ द ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और ऑटोमोटिव सेक्टर, गाड़ी जहाँ बना है टाटा मोटर्स वगैरह. सो इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प फॉर एस्टैब्लिशिंग द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट फॉर ascertainment of particular cost. The develop manual, it help for the develop the cost accounting manual for costing department. Then usually perform the cost accounting department for cost ascertainment, cost comparison, cost reduction and cost control. So cost accounting department help for the particular cost ascertainment, cost control and cost reduction. Then it help for the classification of cost. Different cost can be classified. हम लोग देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे. So type of cost जो होगा, it help for the classification of cost. Then comparison, इंटर-फर्म कंपेरिजन और इंटर कंपनी कंपेरिजन. अपने लास्ट ईयर कॉस्ट के साथ इस साल का कॉस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फीस कर सकते हैं, आप वेरिएंस भी मेजर कर सकते हैं. और सेम इंडस्ट्री में आप कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरा कंपनी ए के साथ कंपनी बी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या एक डिवीजन के साथ दूसरा डिवीजन कंपेयर कर सकते हैं, या सेम इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री के साथ अपना कंपेरिजन कर सकते हैं. सो इट हेल्प फॉर द कंपेरिजन बिटवीन द
cost of particular unit or division or sector, और product wise आप अपना ascertainment कर सकते हैं profit. Then cost analysis, it help for the better cost analysis, cost control or cost analysis. Then reporting, cost reporting, it help for the role for preparation of cost statement, help for the better decision making or reporting. So these are the some of the role of cost accountant in manufacturing sector. Next is the type of classification of cost. So cost can be classified as the following term: cost, predetermined cost, standard cost, estimate cost, marginal cost, your differential cost, then discriminatory cost, decision driver cost, policy cost, inputted cost, product cost, opportunity cost, out of पॉकेट कॉस्ट. सो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए या एमसीक्यू कोई भी चार्टर्ड कॉस्टिंग कंपनी सेक्रेटरी में दे कैन आस्क फॉर द टाइप ऑफ कॉस्ट. सो इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा. देन जॉइंट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, सॉन्ग कॉस्ट, सडन कॉस्ट, कम्यूटेड कॉस्ट, रिलीवेंट कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट. सो ये हो गया टाइप ऑफ डिफरेंट कॉस्ट. देन कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट यूनिट, एलोकेशन, अप्रोक्सीमेट ऑफ कॉस्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. देन क्लासिफिकेशन कॉस्ट, हम लोग इसमें नेक्स्ट जाएंगे तब उसको समझाएंगे. देन मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टाइप ऑफ कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग. ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग हो गया. दिस इज द टाइप एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग. देन मेथड ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, जैसे हो गया जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यो सिंगल और मल्टीपल कॉस्टिंग. सो दिस इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग. हो गया टाइप ऑफ कॉस्टिंग. सो फर्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट टर्म. सो मैंने पहले आपको बताया कॉस्ट क्या होता है. सो कॉस्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉशनल incurred or attribute to giving thing, represent the resources have to been must be sacrificed to particular object. Means amount of expenditure incurred or to be incurred for produce a particular product or rendering service. Then what is predetermined cost? Predetermined cost means which is calculated in advance. So predetermined cost are computed in advance. So predetermined cost हो गया जो आप पहले से एडवांस उसको एज्यूम कर लेते हैं और निकाल लेते हैं बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट. सो कॉस्ट व्हिच इज कंप्यूटेड बिफोर एडवांस ऑफ और प्रोडक्शन स्टार्ट. देन स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्रीडिटरमिन्ड कॉस्ट व्हिच इज अराइव्ड एज्यूमिंग पर्टिकुलर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इंस्टॉल ऑफ मटेरियल. ये भी जो है कि एडवांस होता है बट इन पर्टिकुलर लेवल ऑफ एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और सर्विसेज based on some assumption. Standard cost is prepared or it is a cost which is computed as per some assumption in particular level of output, or you can say for material or indirect service. हम लोग देखेंगे what is standard cost and predetermined cost, and it is useful for basic price fixation and price control. Standard cost is used for price fixation and standard cost. So estimated cost. So what is the difference between estimated cost and standard cost? So estimated cost is the
अप्रोक्स कॉस्ट असर्टेनमेंट, मतलब 10 रुपये खर्चा होने वाला है. सो अप्रोक्स कॉस्ट, इट इज ए अप्रोक्सीमेट ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. व्हाट विल बी द कॉस्ट, मतलब क्या खर्चा हो सकता है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और एंटीसिपेटेड इन फ्यूचर चेंज. पास्ट एक्सपीरियंस को लेके फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट. पास्ट एक्सपीरियंस को लेके फ्यूचर के कॉस्ट असर्टेन में करना हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट. द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट. एसेंस बोथ द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट आर डिफरेंट. सो अभी डिफरेंस देखेंगे. स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेट कॉस्ट, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड कॉस्ट है, प्लीज गो थ्रू इट. So standard cost, it emphasizes what should be the cost. Standard cost क्या होता है, what should be the cost, but estimate cost it presume the what will be the cost. ये हो गया should होता है और ये will use होता है. So standard cost there what should be the cost and estimate is what will be the cost. Then standard is used for parameter for efficiency. Use for parameter, क्या इसका use है, it is a parameter for efficiency and it is used for perceptions of efficiency applied. Then it reverse at frequency of interval, it is revised. Standard cost जो होता है ये revised होता है as per the time. हर एक टाइम इंटरवल पे स्टैंडर्ड कॉस्ट रिवाइज होता है, बट एस्टिमेट कॉस्ट इज कैन नॉट बी रिवाइज्ड, ये रिवाइज नहीं होता है. द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ascertained on assumption that free movement of cost will not be allowed. It is the pre-assumption that free movement of cost will be allowed. But ascertainment of estimate cost is ascertainment on the assumption that free movement of cost will not be allowed. फ्री मूवमेंट ऑफ कॉस्ट अलाउ नहीं है और इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ कॉस्ट अलाउ है, इसमें एस्टिमेट में. द स्टैंडर्ड इज द मोर सुटेबल इन नेचर. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मोर सुटेबल इन नेचर where the estimate cost is more flexible or every change in the situation. Then it is reliable or true for cost control. Standard cost is the reliable for cost control, but estimate cost is not reliable for your cost control. So this is the basic difference between standard and estimate cost. So please, if you want to write down, write down. Next is your marginal cost. What is marginal cost? Marginal cost is nothing but the variable cost. It will vary with the productions. So the marginal cost will be changed if there will be change in the 1 unit also in production. So let's start. It is the amount of giving volume of output by which aggregate cost, means to aggregate cost will be, total cost will be, aggregate cost will be change, the volume of output change, increase or decrease in the unit. अगर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. देन डिफरेंशियल कॉस्ट. व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट? Differential cost is the total cost difference between alternative calculated to ascertain the decision making. Difference cost is the total cost. It is a total cost
between the alternative calculated ascertained by the decision making, thus represent the total cost, both fixed and variable cost, due to change in the level of activity, technology, process or method. मतलब ये टोटल कॉस्ट जो है, फिर कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है. सो फिक्स्ड कॉस्ट विच इज fixed cost will be fixed for the production, whereas the variable cost will vary with the production. So differential cost is nothing but the change in the production or process or methods. जब अगर कॉस्टिंग का मेथड चेंज कर देंगे, कॉस्टिंग का प्रोसेस चेंज कर देंगे या प्रोडक्शन का ऑपरेशन का मेथड चेंज कर देंगे तो कॉस्ट चेंज हो जाएगा. दैट इज व्हाट करंट सिनेरियो एंड प्रीवियस सिनेरियो में आप उसको मेजर करते हैं. दैट इज व्हाट कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्टिंग. सपोज आप एक प्रोसेस मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, दूसरा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, दोनों में चेंज जो होगा दैट इज व्हाट कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्ट. देन discretionary cost is escapable or avoidable cost. Avoidable cost is discretionary cost. In other words, it is the cost which is not essential for a particular object. Then decision or driven cost. It is the cost which is incurred following policy decision making. Decision making cost हो गया जो कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसीजन और ड्राइवर कॉस्ट. इट इज द कॉस्ट टू बी इनकर्ड कॉस्ट टू बी इनकर्ड टिल द डिसीजन इज अल्टर्ड एंड इट इज नॉट वेरी विथ चेंज ऑफ आउटपुट. चेंज ऑफ आउटपुट होगा तो ये चेंज नहीं होगा. देन मैनेज पॉलिसी कॉस्ट. ये तो देखा नहीं. नेक्स्ट हो गया इंपोर्टेड और नेशनल कॉस्ट. व्हाट इज नेशनल कॉस्ट और इंपोर्टेड कॉस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है. एज पर द सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, नेशनल कॉस्ट द कॉस्ट वैल्यू बेनिफिट व्हिच वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड. नेशनल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ही नहीं हुआ, दैट इज व्हाट कॉल्ड नेशनल कॉस्ट. नो कॉस्ट हैज बीन एक्चुअली इनकर्ड. Imported cost, that is what called there is a cashless cost. It is not involve cash outflow. जैसे depreciation, for example depreciation, interest on capital payment. So these are the non cost item or imported cost, and which is irrelevant for decision making. The decision making में इसका यूज ही नहीं है, irrelevant for the decision making. Then product cost or invertible cost. Product cost, it is the cost which is assigned with the particular product. एक particular product के लिए अगर cost को आप assigned करते हो तो इसे material cost. Product A, product B, product C, उसमें material cost 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया. So whatever may be the cost allocated or ascertained for particular product, it is known as प्रोडक्ट कॉस्ट. अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग जो होगा वेरिएबल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. अंडर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है. सो इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट, व्हेयरएज इन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट. देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. What is opportunity cost? Benefit forgot for alternative course of action. So that is what called opportunity cost. For example, मैं for example CA किया होता तो मेरा सैलरी 10 लाख होता है, अब मैं कॉस्टिंग किया हूँ मेरा सैलरी 15 लाख है फॉर एग्जाम्पल. सो जो डिफरेंस है, मैं CA किया होता तो 10 लाख होता. सो दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस, 5 लाख जो लॉस हुआ. या मैं डॉक्टर बना होता तो मेरा सैलरी होता 20 लाख रुपया, अभी मैं 15 लाख कर रहा हूँ. सो 5 लाख रुपया अपॉर्चुनिटी बेनिफिट और कॉस्ट. सो इट रेफर द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन फॉर
ascertaining the alternative course of action, जैसे मैंने आपको बताया था। opportunity, so benefit foregone for alternative course of action, that is what opportunity cost. Then out of pocket cost, it is a portion of total cost, it is a portion of total cost which involve cash outlay. इनपुटेड कॉस्ट जो था क्या कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा था, बट आउट ऑफ पॉकेट इज द इन्वॉल्व द कैश आउटफ्लो, इट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, सो इट इज हेल्पफुल फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। दो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो हो गया इट इज हेल्पफुल फॉर द शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग फॉर द मैनेजमेंट, जस्ट लाइक प्राइस फिक्सेशन इन रिसेशन। So out of pocket cost can be avoided if particular purpose or consideration is not accepted. Then joint cost. Joint cost is what? Total cost incurred for different product. मेन प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर एक कॉस्ट इनकर्ड होता है दैट इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। सो सपोज 100 रुपीज इनकर्ड फॉर प्रोडक्ट ए बी सी। सो जैसे मैनेजर सैलरी, एक मैनेजर जो है 3 मशीन को देख रहा है, सो दैट कैन बी ए जॉइंट कॉस्ट। देन पीरियड कॉस्ट, period cost is nothing but the fixed cost which is fixed for the particular period। जैसे हो गया रेंट, रेंट आपका 10 प्रोडक्ट बनाए तभी आपको फिक्स रेंट लगेगा, और 100 बनाए तभी आपको फिक्स रेंट लगेगा। 10,000 देना है तो 10,000 देना है। और इट इज द कॉस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सो इट इज द कॉस्ट व्हिच इज नॉट असाइन्ड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट कैन बी चेंज expenses against the revenue of particular period which is incurred. It will not change. Fixed is fixed. Then sunk cost. Sunk cost is the incurred for past is known as sunk cost, which is incurred in past. Sunk cost. डूब, sunk मतलब क्या हुआ? जहाज डूब जाना, sunk cost. So any cost incurred in past that is known as sunk cost, and it is not used for decision making. So sunk cost is not relevant for decision making. Sunk cost decision making में यूज ही नहीं होता। Then commuted cost. Commuted cost are the fixed which is the result from the decision of prior period, it not subject to management control. जो मैनेजमेंट का कंट्रोल में नहीं है इन प्रेजेंट में उसको बोलते हैं कम्यूटेड कॉस्ट। कम्यूटेड कॉस्ट जो मैनेजमेंट का कंट्रोल में नहीं है, इट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस ऑन प्रीमियम हो गया, रेंट हो गया, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कम्यूटेड कॉस्ट। देन शटडाउन कॉस्ट, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द टेम्पोररी क्लोजर ऑफ प्लांट। शटडाउन कॉस्ट, हर एक प्लांट जो होता है सम जैसे एनुअल शटडाउन होता है या 6 मंथ में शटडाउन होता है प्लांट का रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड शटडाउन कॉस्ट। इट इज ए फिक्स्ड इन नेचर known as shutdown cost during the temporary closure of shutdown. It is a temporary closure of plant for maintenance. The relevant cost, SEMA, as per SEMA, Chartered Institute of Management, relevant costs are the cost appropriate for specific management decision. कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीजन लेने के लिए अगर कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फॉर decision making is relevant cost. स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन के लिए जो कॉस्ट हो रहा है। द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनकर्ड फॉर रिप्लेस बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द करंट मार्केट प्राइस। जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है करंट मार्केट प्राइस का कॉस्ट होता है, क्या बोलते हैं रिप्लेस कॉस्ट। जैसे एक मशीनरी अभी खरीदा, 10 साल पहले एक मशीन का खर्च उसका है, सॉरी 2 साल पहले एक मशीन खरीदा, उसका दाम है 10 लाख रुपया।
अभी उसका दाम है 12 लाख रुपया. So what is the relevant cost? Sorry, replacement cost is your 12 lakh rupees is your replacement current market price. Then absolute cost is the total cost for any product or process. For example, cost sheet, both absolute cost or cost per unit, or that is called absolute cost, is known as total cost or any product or process. Then this is the type of cost I have explained. Next is your cost center. What is cost center? Cost center is a location, person or unit where cost is ascertainment. जैसे हो गया एक मशीन भी कॉस्ट सेंटर हो सकता है, ठीक है. इट इज ए पर्सन, एक आदमी भी कॉस्ट सेंटर हो सकता है. इट इज ए प्लेस, ए पर्टिकुलर प्लेस भी कॉस्ट सेंटर हो सकता है. सो कॉस्ट सेंटर इज ए पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन पर्सन वेयर कॉस्ट इज ascertained फॉर कॉस्ट कंट्रोल. क्यों कॉस्ट ascertained होता है? फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड यूज फॉर कॉस्ट कंट्रोल. सो देखते हैं व्हाट इज कॉस्ट सेंटर. सो द टर्म कॉस्ट सेंटर इज डिफाइंड द लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट और ग्रुप where cost may be ascertained and used for cost control. For installation of costing system, organization has to divide the सब यूनिट. जब कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया जाता है तो हम लोग जो है कॉस्ट सेंटर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फॉर विच कॉस्ट कैन बी बेटरली कंट्रोल और असर्टेन. नेक्स्ट हो गया कॉस्ट सेंटर इज ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट. इट इज ए स्मॉल यूनिट or it can be a group. Then type of cost center, it may be personal, impersonal, production or service. So चार तरह होता है. पर्सनल, इट इज ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन. देन इम्पर्सनल, जैसे लोकेशन हो सकता है. देन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, it can be cost center can be both direct or indirect expenses incurred for production of प्रोडक्ट. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मेथड हो गया लेबर कॉस्ट हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट हो गया जैसे हो गया सैलरी ऑफ द स्टोर कीपर, हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट. देन सर्विस सेंटर कॉस्ट सेंटर, ए कॉस्ट सेंटर व्हिच इज रेंडरिंग द सर्विस फॉर टू द प्रोडक्शन सेंटर, इट टर्म में सर्विस सेंटर. जैसे मैंने क्या एक जो है कि पीडीसी मशीनिंग असेंबली जो आपको बताया था, जनरली ऑटोमोटिव में प्रेशर डाई कास्टिंग मशीनिंग एंड असेंबली एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, जैसे हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट. दीज आर द सर्विस यूनिट. सो ये सर्विस यूनिट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है. So these are called service cost center and is the production cost center. Then cost unit क्या होता है? Cost unit, so the term cost unit define the unit of quantity of product or services or time और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. इन रिलेशन टू हिच कॉस्ट कैन बी असर्टेन और एक्सपेंडिचर इन पर्टिकुलर जॉब और बैच और ए प्रोडक्ट ग्रुप. इट इज ए कॉस्ट यूनिट. पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट. वहां तक वेरियस कॉस्ट कैन बी इनकर्ड, द इट इज अराउज, द टोटल कॉस्ट कैन बी अराउज and product or services and number of unit produced. Cost unit can usually physical measure of unit of, जैसे हो गया cost unit. It can be wattage, time, length और volume. That is called cost unit. जैसे हो गया आपका शुगर, जिसे हम आगे में देखेंगे. देखिए cost unit, जैसे इंडस्ट्री हो गया,
ये हो गया मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड पर यूनिट कॉस्ट। नर्सिंग होम कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पर बेड, पर वीक, ये हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टील के लिए इट इज ए प्रोसेस कॉस्टिंग, पर टन होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर किलोमीटर में होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बाईसाइकिल में मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम यूज होता है, ईच यूनिट। कोल में सिंगल, पर यूनिट, सिंगल मेथड है, पर यूनिट मैट्रिक टन। फर्नीचर में मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम, पर यूनिट कॉस्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट जॉब के लिए ईच जॉब, इंटीरियर जॉब ईच कॉस्ट। ब्रिज जो बनता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ईच कॉन्ट्रैक्ट। शुगर में प्रोसेस इंडस्ट्री, पर टन। So these are the some industry and method of costing and cost unit. Then responsibility center. When the organization is divided into sub-unit, according to the responsibility for each sub-unit is specified individual made responsible or sub-unit made for term of responsible cost center. एक डिपार्टमेंट जब है उसको सब यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर और सब यूनिट, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर डिवीजन का जो है, ही इज रेस्पॉन्सिबल और सी इज रेस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर डिवीजन, सो दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ही कोई भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कॉस्ट इनकर्ड हुआ, नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर पर्सन और यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर सब यूनिट, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी center. Special individual is held responsible for the activities are directly offered. So responsibility center can be divided investment center, revenue center and contribution center or profit center. Profit center which generate or maximize profit. जो प्रॉफिट जनरेट करता है उसको प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जो सेंटर। देन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग और ऑपरेशन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन, इट ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इन टर्म एज रिटर्न और इन्वेस्टमेंट सेंटर। देन रेवेन्यू सेंटर इज द रेजिंग द रेवेन्यू, इट इज हेल्प फॉर द रेजिंग ऑफ रेवेन्यू विथ रेस्पॉन्सिबल और ट्रांजेक्शन कॉल्ड रेवेन्यू सेंटर। Then contribution center. Contribution center is the profit center where expenditure is repeated on marginal cost basis is called contribution system. In contribution center में जो होता है contribution को लिया जाता है, sales minus use variable cost is contribution. So in profit center है जो है a certain rate of cost on basis of contribution. So this is all about the type of responsible center. Then element of cost. So there are three element of cost: material, labor and overhead. So material is divided into three parts. Material two parts: direct material, indirect material. The labor also divided into two parts: direct labor, indirect labor. Overhead also or other expenditure, direct expenses और indirect expenses. So direct material, direct labor, direct expenses हो गया prime cost, और indirect material, indirect labor, indirect expenses is overhead. So a direct direct material, direct labor, direct expenses. ये हो गया प्राइम कॉस्ट. देन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया ओवरहेड. सो डायरेक्ट मटेरियल ए, ये हो गया A1 A2,
ए B1 B2 B3 सॉरी वट एवर बी ले लो B1 B2 सो A1 A2 हो गया प्राइम कॉस्ट, B1 B2 हो गया ओवरहेड. So direct material, direct labor, direct expenses is prime cost. Indirect labor, indirect expenses, indirect material, indirect expenses, and indirect labor is overhead. So this is the element of cost. So thank you very much, friend, for keeping listening me in focus, or with keep patience with you for next classes. और जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, जो टाइप ऑफ कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एंड बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मैं बेसिक भी आपको बताऊंगा. सो ये खत्म हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्टिंग बेसिक्स.